Happy Republic Day. The video you're about to see is beginning of my celebration of Republic Day. Uh, it is also an appeal for funds for the social enterprise in Goa, Mission Karam, which some of you all are aware of. I thought of asking the taking funds from the and checking with one of the ministers here or uh, someone who could help me get the grant from the Prime Minister's Relief Fund, Prime Minister's Fund. However, I found that his the his Reserve Bank governor is in abject poverty because when I went to settle the uh, my Axis Bank account, which was frozen by a folly of his, not only did the bank want me to pay up, which I had already kept money for, but they allowed the card to go outstanding, and now they want me to pay up an interest of over 25,000. I went to settle that in Bombay. I have not heard anything about it yet. So I thought I'd just go about doing it myself. This is how the grace of Christ works. I could take action on the bank for taking money from an account that was frozen by the Reserve Bank of India governor, contrary to his orders, and transferring money to the credit card in spite of the account being frozen, and then allowing the funds to collect after an interest of 25,000 had collected. They want me to pay it back. Now that is not only idiocy, but it is also unfair. So, out of the grace of Christ, I have the Lord Jesus Christ. I have decided to raise the funds. I am seeking 25 donors, 25 donors to to donate just 2,000 rupees, just 2,000 rupees. Uh, the outstanding is 25. I will use 10% of this towards funding myself, and the rest of it I will pay up some of the credit card, because the bank, not only the bank is so in abject poverty, but also the Reserve Bank of India. I will pay up that and start celebrating Republic Day. Hallelujah! Praise the Lord. I will put the QR code on the video. The video is about, I've called it Adi Yogi, the time traveler. While I was doing some research about the Isha Foundation, and I was thinking about with my thumbsteins, the Lord Shiva, I found that he is considered to be the first Adi Yogi, and one of his qualities is that he can move in and out of time. So I took this video across the panorama of the promise of God from Abraham to David and to Christ and beyond, where we as Christians are a city on a hill with the kingdom of God within our hearts and Christ ruling our hearts in Jesus' name. Amen. So that we can rule the hearts of others, including Axis Bank and the Reserve Bank of India governor. Hallelujah. And I'll be forming a team for the coming year. I have spoken to a few of my friends who I've met on my travels, both Christian and non Christian. I will send them a personal note to buy in and ask them if they are willing to come on board for the task ahead. The Many of the chowkidars and the garbage pickers are my friends. I'll put it in a corpus and give it to the minister concerned so that he can improve, or the panchayat concerned, and improve the lot of these people. And it will be managed by one of the fund managers. The second corpus will be set aside. It will be for Mission Karam. हालेलुया। मैं आज की आज मैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी में, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपना रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन। रिपब्लिक की मतलब है कि राजा प्रजा राजा का सेवा नहीं करता है, राजा प्रजा का सेवा करता है।
ये है रीति है रिपब्लिक का। इसलिए मैं तो दिल जान से आज़ादी से ज़्यादा मैं रिपब्लिक डे मैं मानूंगा, प्रथम दिन मानूंगा। और हम इस देश में 75 साल मना रहा है, जहाँ राजा मिनिस्टर लोग प्रजा का सेवा करता है। हाँ ना, करते आए हैं ना, या प्रजा उनकी सेवा कर रहे हैं, पता नहीं। तो मैं इस भक्ति में मैं आपको एक वचन पढ़ता हूँ, जो पेंडेमिक से पहले जब मैं मेरी टैक्सी चला रहा था, मेरे मन में जब मैं भक्ति कर मन में भक्ति कर रहा था, तो ये वचन आया था कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हे, शांत रहो और देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रभु हूँ। तो इस संगीत को दाऊद ने जो लिखा था, और दाऊद का कहानी मैं आज सुनाने वाला हूँ। ये संगीत मैं पहले पढ़ता हूँ, और ये भक्ति का नाम है आदियोगी द टाइम ट्रैवलर। आदियोगी द टाइम ट्रैवलर। मैं बताता हूँ, मैं इसको क्यों मैं आदियोगी द टाइम ट्रैवलर बता रहा हूँ। तो मैं ये पढ़ता हूँ वचन, अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, ताकि मुझे हिंदी का बाइबल अभी तक नहीं है, तो मैं लाने वाला हूँ, पैसा नहीं है भाई। God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with surging. Shalah. There is a river. ये इसमें ध्यान रखो। There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. God of Jacob is our fortress. Come, आओ देखो, come see the works of the Lord, the desolations he has brought upon the earth. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shield with fire. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Be still and know that I am God. इस आप लोगों के लिए, मेरे में जो हिंदी समझते हैं उनके लिए मैं ये गाना मैं गाता हूँ। इस वचन को मैं गाना में, तो चले हम भक्ति करते हैं। शांत रहो, मैं हूँ प्रभु। ये है यीशु मसीह का संदेश। शांत रहो, मैं हूँ प्रभु। मैं हूँ प्रभु। शांत रहो, मैं हूँ प्रभु। शांत रहो, मैं हूँ प्रभु। शांत रहो, मैं हूँ प्रभु। हालेलुया। मैं हूँ प्रभु, जो पाप के दंड चुका क्रूस पे। मैं प्रभु जो क्रूस पे था। मैं
that I am God. हालेलुया। मैंने प्रैक्टिस बराबर नहीं किया है। हाँ, इस भक्ति को जितने भी जल्दी मैं रिकॉर्ड करना था मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो मैंने कहा था कि जिस संगीतकार दाऊद था और जिस नदी के बारे में वो बात कर रहा था, जो परमेश्वर की जीता जागता अभी भी मौजूद एक जगह है जिसका नाम है जेरूशलम। उससे पहले उस जेरूशलम का थोड़ा सा हिस्ट्री और यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, मैं इसी का संदेश एक ही है। हे भाई, शांत रहो, मैं हूँ प्रभु, आई एम गॉड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, कीप बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तो ये इस जगह का नाम, जिस मैं वापस पढ़ता हूँ जो 46 में, देयर इज अ रिवर, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनको दिन की शुरुआत में जैसे सूरज उगता है उनका मदद करेगा। काफी देश जो है, नेशंस चिल्लाएंगे, राजधानियां गिर पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर उनका आवाज उठाता है तो राजधानी क्या, देश क्या, पहाड़ क्या, हे भाई, पूरे संसार पिघल जाता है। ऐसे परमेश्वर की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो ये दाऊद जिस नदी की बात कर रहा था, वो नदी जेरूशलम में है, ऐतिहासिक नदी है ये। और इस जेरूशलम की स्थापना के बारे में मैं आपको इस कहानी सुनाने वाला हूँ, और कैसे यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। द सिटी ऑफ गॉड, एक शहर जो है द सिटी ऑफ गॉड। तो इस जगह एक पर्वत पे है, जिसका पर्वत का नाम है माउंट मोराया। इस माउंट मोराया पे इब्राहिम ने उनकी पुत्र को परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हुए उसकी बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। लेकिन जब ये यहाँ माउंट मोराया पे पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा था कि इब्राहिम, मैं आपने मेरे आज्ञा पालन किया, ठहरो, आपकी बेटा की बलिदान मत करो। और जंगल की कांटों में एक बकरा था। इब्राहिम ने उस बकरा का बलिदान किया था और उस जगह को वहाँ उन्होंने कहा था कि यहोवा जाहिरे, यहूदी की भाषा में द लॉर्ड विल प्रोवाइड, एंड ही प्रोवाइडेड। परमेश्वर स्वयं इस माउंट मोराया पे बलिदान देगा। तो अभी हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं करीबन 500 साल, जब परमेश्वर ने एक आदमी को बुलाया था, इब्राहिम, उनको टू मेक देम इनटू अ नेशन, उनको इजिप्ट को जाना पड़ा। इजिप्ट में करीबन 430 साल था, और समझो 1000 साल की अंतर में दाऊद को राजा बनाया गया था। पहले इज़राइल के पहले राजा सॉल युद्ध में उनकी देहांत हुआ था, और दाऊद
हेब्रोन में था। हेब्रोन वह जगह था जहां इब्राहिम को उनका पहला कब्र मिला था, जहां उन्होंने उनकी बीवी सहारा का को दफनाया था। जो पहला पहला परमेश्वर की पहला इस पृथ्वी पे पैर कब्र में हुआ था, और कब्र के बाजू वाला जगह में मिला था एक गुफा जिसका नाम था मैकफिला, जहां जहां इब्राहिम, सहारा, रेबेक्का, जेकब सब वहां दफनाया गया था। अभी भी है, अभी भी है वहां अरबिया में। हे प्रभु, ये हमें अपनी छोटापन की महसूस होता है कि आपकी योजना, आपकी योर प्लान इज सो परफेक्ट लॉर्ड, इट्स इज सो परफेक्ट। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। 1000 साल के बाद दाऊद इस जगह की जेरूसलम की जगह को हड़प करने के लिए उनके साथ उनके 30 बहादुर थे। और इस जगह दाऊद के लिए खास था, क्योंकि इसका पैदाइश इन दिस प्लेस ही वॉज बॉर्न, यहाँ उनकी पैदाइश हुआ था। उनकी पैदाइश यहाँ हुआ था बेथलेहम में। और ये और ये अभी जबूसाइट के कब्जे में थे, तो जेबूसाइट्स ने उन्होंने उसको कहा, हे भाई दाऊद, आप कभी नहीं इसको हड़प कर सकेंगे। लंगड़ा, लूला और अंधा आपके विरुद्ध होगा। आप इसको कभी आप कभी नहीं इसको कब्जा कर सकते। तो दाऊद ने उनके 30 बहादुरों को एक चुनौती दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझे बेथलेहम से पानी लेके आया, मुझे उस बेथलेहम की पानी पीना था। इस पानी की मतलब इस नदी से बहता था। और जेरूसलम की कब्जा करने के लिए सिर्फ इस नदी से हम उसकी कब्जा कर सकते थे। तो निकले बहादुर वहाँ, और वो और एक प्याला में बेथलेहम के पानी लेके आया। और दाऊद ने कहा, उसने बेथलेहम की पानी पकड़ के उसको खाली किया। वो बोला, मैं इस पानी को नहीं पीऊँगा। इट वॉज सिम्बॉलिक। तब से इन लोग का एक कहावत है कि हे भाई, अंधे, लंगड़े, लूले, आपको परमेश्वर की राजधानी उनको कब्जा करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की राजधानी की स्थापना करने के लिए। भाइयों, दाऊद का राजधानी स्थापन हुआ, और परमेश्वर वो सोचने लगा थे कि हे भाई, मैंने सब कुछ कर लिया था। तो उसने उनकी एक खास 30 बहादुर में से जोआब को कहा कि हाँ भाई, हमारे बहादुरों की संख्या कितने हैं आप देख लो। अब मेरे बहादुर, मुझे गिनना है भाई, कितना संख्या है इस हमारे देश में। परमेश्वर उस पे क्रोधित हुआ था, और मौत के स्वर्गदूत को भेज के उनको वहाँ कहानी को छोटा मैं बताता हूँ। मौत के स्वर्गदूत को भेज के
इज़राइल के देश के लोगों को, बहादुरों को मारने लगा, तो दाऊद इतना इतना टूटा था कि वो वहाँ वो इंजिल स्वर्गदूत के सामने खड़ा रह के भाई बोला, बस भाई बस, आप मत, हे भाई, हे प्रभु, अब मुझे मारो, मेरी जान लो, मेरे मेरे लोगों की जान मत लो। जिस जगह पे इस जिस जगह पे इस मौत के स्वर्गदूत रुका, उस जगह वही पर्वत था जिस पे इब्राहिम 1000 साल पहले उनकी पुत्र को बलिदान करने की कोशिश किया था। तो दाऊद ने कहा कि हे भाई, मैं इस जगह पे परमेश्वर की स्तुति करूंगा और एक मंदिर बनाऊंगा, एक छोटा सा लेकिन उस जगह जेबूसाइट का अरुणा का था। तो उसने कहा कि अरुणा को, भाई मुझे इस जगह को बेचो, मैं आप यहाँ मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो वो वहाँ मंदिर बनाया था, उसने ऑल्टर बनाया था, और लेकिन परमेश्वर ने उनको आज्ञा नहीं दिया था, क्योंकि उसके हाथ खून से रंगीला था, क्योंकि वो इज़राइल देश की स्थापन करने की कोशिश कर रहा था। दाऊद परमेश्वर का दिल जीत लिया था। He was a man after God's own heart. David was the man. और उसने कहा, जिस आशीष इब्राहिम को दिया गया था, उस आशीष दाऊद को कंफर्म किया था कि आपकी पीढ़ी से मसीहा आएगा, जिसका राजधानी अटूट होगा और अनंत होगा, जिसका राजधानी अटूट होगा और अनंत होगा। फास्ट फॉरवर्ड 1000 साल के बाद इस माउंट बेथलेहेम, क्रेडल रॉक्स दैट स्टिल रॉक्स द वर्ल्ड, बेथलेहेम में यीशु मसीह आया। घोर अंधेरा रात पे, एकदम सुमसाम रात पे, ना कोई जाना था, सिर्फ चरावा लोग जो बेड़ियों को संभाल रहा था, उनको सूचना दिया था कि आप दाऊद को, इब्राहिम को, जो मसीहा की इंतजार था, वो बेथलेहेम में पैदा हुआ क्रिसमस के दिन पे, और 33 साल जी के क्रूस पे जाके हमारे परमेश्वर, राजाओं के राजा मसीहा यीशु मसीह ने उनकी राजधानी की स्थापन किया था। भाई, उनकी राजधानी इस पृथ्वी पे जगह जगह पे मौजूद है, क्योंकि उसकी राजधानी जो है जमीन की राजधानी नहीं है, उसकी राजधानी दिल की राजधानी है, बहादुर दिल की राजधानी है, जो सही करने के लिए उन्होंने अपनी पूरे पाप के दंड क्रूस पे लेके उसको गुफा में दफना के जी उठने पे हमें ताकत दिया, ताकि हम प्यार, आनंद, शांति, सबर, कोमलता, ये सब 9 गुण हम ईसाई, जो यीशु मसीह को राजाओं के राजा, प्रजाओं और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु मानते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता हूं। तो हाँ भाई, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल, हे भाई, शांत रहो। देखो, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा
आपके दिल पे खटखटा रहा है, ताकि हम रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट करें? हम इस ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे हम 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। राजा प्रजा राजा है, राजा प्रजा नहीं है। हम उनकी सेवा करें, वो हमारी सेवा नहीं करें। और यही रीति है रिपब्लिक के, यही है रीति रिपब्लिक के। हे प्रभु, मैं अंग्रेजी में प्रार्थना करता हूँ। हेवनली फादर, थैंक यू लॉर्ड फॉर this great city on a hill, a republic, Father, that rules, not, Father, lording it over people, not but serving them, Father, with a heart that is true and pure, not afraid, Father, to do what is right and just, because the Lord Christ promised as a blessing to Abraham, David, and finally through Mary, who his mother on earth, Father, who chose and was obedient to the call of God, at the risk, Father, of being stoned to death. At the risk of being stoned to death. Thank you, Lord, for Mary saying yes to this greatest gift that she was able to give to us at Bethlehem, to the cross and beyond. And we wait patiently, Lord, for him to come. He already rules in our hearts, and we are the lamp on a lampstand. And together, let us be, O Lord, a city on a hill that cannot be hid. In Jesus' name, Amen.